السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کلاس فرسٹ ایئر کے دوسرے سبق اپنی مدد آپ کا اس کا تشریح کا سوال کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کا خلاصہ کیا تھا، تو آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو تشریح کے لیے جو پیراگراف ہے ہمارے مشق میں دیا ہوا ہے، تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ تو یہ والا جو پیراگراف ہے اس کی آج ہم تشریح کریں گے۔ یہ پیراگراف ہمارے بالکل پہلے ہی صفحے پہ دیا ہوا ہے کہ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی قوم کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں، بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ ناتہذیبی و بدچلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہیں، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ یہ ہمارا پیراگراف ہے اور اس کی اب ہم باقاعدہ تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں تشریح طلب عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ مطلب اس میں کیا ہے کہ حکومتوں کا جو تمام تجربے، کیونکہ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے، تو اس میں سب سے پہلے مصنف بیان کہ تمام تجربے تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، مطلب جتنے بھی تجربے کیے گئے، آزمائشیں کی گئیں، ان سب سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اب کسی بھی ملک کی جو قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کی خوبی ہوتی ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے، اس کے اگر ہم نے جانچ پڑتال کرنی ہے، اس کو دیکھنا، اس کو جانچنا پرکھنا ہے کہ کسی ملک یا قوم کی ترقی کی کیا وجوہات ہیں، کیسے اس قوم نے ترقی کی، کیسے وہ کامیابی انہوں نے حاصل کی، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے جو افراد ہیں یا اس کی رعایا ہوتی ہے، ان کا اس کا مطالعہ کرے کہ اس کی عوام کیسی ہے۔ اگر ہم نے کسی قوم کی ترقی کو دیکھنا ہے تو اس کی عوام کو دیکھیں، اس کے افراد کو دیکھیں کہ اس کے افراد کس طرح کے چال چلن کے مجموعہ ہے، کیونکہ کیا ہے کہ قوم جو ہوتی ہے وہ افراد کا ہی مجموعہ ہوتی ہے، کہ قوم فرداً ایک شخص مل کر وہ قوم بناتا ہے۔ تو ہر فرد اگر اچھا ہوگا، ایماندار ہوگا، محنتی ہوگا، تو وہ کیا ہوگا، ہر شخص ایسا ہوگا تو پھر وہ کیا، وہ قوم بھی ویسی ہی ہوگی، کیونکہ یہ قوم وہ شخصی حالتوں کا ہی مجموعہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر فرد وہ قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کی ترقی میں بھی، اس کی تنزلی میں بھی، مطلب کامیابی ناکامی میں اس قوم کا ہر فرد اپنا اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ تو ایک قوم کی تہذیب مطلب ایک قوم کی تہذیب در حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اس کے جو بچے ہیں، وہاں کی رعایا ہیں، وہ سب کیا ہیں، وہ انہی پر منحصر کرتی ہے، کیونکہ ان سے انہی افراد سے مل کر وہ قوم بنی ہے۔ تو چنانچہ کسی بھی ملک اور حکومت کی اچھائی کا انحصار اس کی عوام کے کردار پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکومت اچھی ہے تو مطلب اس کی رعایا اچھی ہے، اگر رعایا اچھی ہوگی تو حکومت بھی اچھی ہوگی۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رعایا بہت زیادہ اچھی ہو اور حکومت ان پر بری ہو یا اکڑ مزاج ہو، یا پھر رعایا وہ بد مزاج ہو، اکڑ مزاج ہو، جاہل ہو، تو ان پر مہذب قسم کی حکومت قائم کرے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسا چال چلن رعایا کا ہوگا تو اسی کے برعکس حکومت ہوگی، کیونکہ افراد کی جو مجموعی کردار ہیں وہی حکومت کو متاثر کرتے ہیں، اسی پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت کیا ہوتی ہے، جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رعایا میں سے منتخب کیے جاتے ہیں، انہی کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسی تربیت ان کی ہوگی وہ آگے چل کر حکومت میں جا کر ویسا ہی کردار انجام دیں گے، اور انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ کس طرح کے ہیں۔
तो उसके बाद जो अगला पैराग्राफ है यहाँ से शुरू होता है, इसमें क्या है, कौमी तरक्की मजमूआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी का। यहाँ पे क्या है कि मुसन्निफ 4 अनासर बताते हैं कौम की तरक्की के, कि कोई कौम अगर तरक्की करती है या तरक्की याफ्ता है तो उसके पीछे कौन से 4 अनासर होते हैं। तो कौमी तरक्की के 4 अनासर जो हैं मुसन्निफ ने यहाँ पे बयान किया। तो पहला जो सबसे पहला उनका जो खूबी उन्होंने बताई है या नुक्ता उन्होंने उठाया वो है शख्सी मेहनत। मतलब इनके नज़दीक जो है मेहनती इंसान किसी भी कौम के, वो कहते हैं, माथे का झूमर होता है, कि मेहनती इंसान जहाँ अपनी ज़ात को नफ़ा पहुँचाता है, कि मेहनत करता है, अपने लिए काम करता है, मेहनत करता है, अपनी ज़ात को फ़ायदा, साथ ही साथ वो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाता है, मुल्क कौम को भी फ़ायदा पहुँचाता है। क्योंकि कौम का अगर हर फर्द मेहनती होगा तो फिर वो क्या होगा, वो कौम भी तरक्की करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। तो वो क्या होता है, सबसे पहले जो है पहला ये आंसर या पहली खूबी जो है वो शख्सी मेहनत है, कि अगर हर फर्द जो है मेहनती हो जाए तो वो क्या है, मुल्क जो है तरक्की करेगा, वो कौम तरक्की करेगी। दूसरा जो नुक्ता है वो है शख्सी इज़्ज़त का। ये जो है मुसन्निफ ने दूसरा नुक्ता हमें बताया, ये दूसरी खूबी बताया, वो शख्सी मेहनत है, कि अगर शख्सी इज़्ज़त है, कि अगर हर फर्द जो है ज़ाती तौर पर उसे अपनी इज़्ज़त का एहसास होगा तो वो कौम जो है ज़रूर तरक्की करेगी। तो मतलब एक बंदे को अगर अपनी इज़्ज़त का एहसास है, अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, तो वो दूसरों की भी इज़्ज़त का ख्याल करेगा, दूसरों का भी एहतराम करेगा। तो अगर उसे अपनी इज़्ज़त प्यारी है तो वो दूसरों की भी इज़्ज़त का ख्याल करेगा। लेकिन अगर जिस बंदे को अपनी इज़्ज़त का ही ख्याल नहीं होगा तो वो दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेगा, और ना ही वो कौम के लिए इज़्ज़त व वक़ार का बाहिस बनेगा, वो कौम के लिए जो है ज़िल्लत का बाहिस ही बन सकता है। तो यहाँ पर मतलब दूसरी चीज़ है वो है ज़ाती इज़्ज़त, शख्स की इज़्ज़त। ये चीज़ जो है हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हर शख्स को अपनी इज़्ज़त का ख्याल है तो वो मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। तीसरी जो उन्होंने खूबी बताई है वो है शख्सी ईमानदारी। मतलब पहले नंबर पर मेहनती होना, फिर हर शख्स को अपनी इज़्ज़त का एहसास होना, और तीसरी जो चीज़ है वो है शख्सी ईमानदारी, कि अगर हर शख्स जो है वो ईमानदार हो, मतलब कौम का हर फ़र्द जो है वो ईमानदारी का मुज़ाहिरा करे। अगर कौम का हर फ़र्द ज़ाती लिहाज से ईमानदार है और अपनी ज़िम्मेदारियों को वो ईमानदारी से सरअंजाम देता है तो ये खूबी जो है कौमी तरक्की का ज़रूर सबब बनेगी, कि हर बंदा जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी जितने भी उस पर जो है ज़िम्मेदारियाँ हैं उन सब को जो है ईमानदारी से पूरा करता है तो वो कौम ज़रूर तरक्की करेगी। चाहे कोई एक मुलाजिम है तो वो मुलाजमत के दौरान अपने उस पर जो जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं उसको ईमानदारी से अदा करे तो ज़रूर कौम तरक्की करे। घर में रहते हुए घर में हमारे बहुत सी ज़िम्मेदारी, तो हर फ़र्द अगर इसी तरह से ईमानदार हो जाए, ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है पूरा करे तो कौम ज़रूर तरक्की करेगी। तो ये 3 अनासर हो गए। उसके बाद जो आगे चौथा आंसर जो है वो बताया है वो है शख्सी हमदर्दी का, कि अगर हर शख्स जो है हर कौम का हर फ़र्द जो है ज़ाती लिहाज से हमदर्द हो जाए, मतलब उसे कौम की हमदर्दी का ख़याल हो, वो दूसरों का हमदर्द बन जाए, दूसरों का ख़याल करे, दूसरों की ज़रूरत में जो है उनकी मदद करे, ये खूबी उसके अंदर अगर पैदा हो जाए तो वो कौम जो है ज़रूर तरक्की करेगी। मतलब ये 4 अनासर हैं कौम की तरक्की का, कि हर फ़र्द में अगर मेहनत, इज़्ज़त, ईमानदारी और हमदर्दी ये जज्बा पैदा हो जाए तो वो कौम जो है ज़रूर तरक्की करेगी। उसके बाद क्या है, मतलब ये तरक्की के 4 अनासर बता दिए। फिर आगे उन्होंने कौमी तनज़्ज़ुल के जो हैं अनासर बताए हैं कि कौम की जो नाकामी है या तनज़्ज़ुल है वो तनज़्ज़ुल का शिकार कब होती है, किन अनासर की वजह से जो है कौम तनज़्ज़ुल का शिकार होती है, नाकामी का शिकार होती है। उसके लिए उन्होंने फिर आगे अनासर बताए कि शख्सी सुस्ती, मतलब जो सुस्ती है ये क्या है, ये कौम की तरक्की में एक रुकावट है। मतलब जो होगी शख्सी सुस्ती, कि अगर हर बंदा सुस्त हो जाएगा, वो अपना काम जो है जो अच्छी तरीके से सरअंजाम नहीं देगा, सुस्ती का शिकार रहेगा, सुस्ती से काम करेगा, तो फिर वो कौम क्या है, कभी भी तरक्की नहीं करेगी। कौम वही तरक्की करती है जिसके जो हर शख्स है वो
चाको चौबंद रहे, चुस्त रहे, अपने ज़िम्मेदारी को जो है अहसन तरीके से सर अंजाम दे। लेकिन अगर ये खूबी उसमें नहीं होगी, वो सुस्ती का मुज़ाहिरा करेगा, मेहनत नहीं करेगा, और तो फिर क्या होगी, कौम जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार होगी, नाकामी का शिकार होगी, ज़वाल का शिकार होगी, जब उसके कौम का जो हर फ़र्द है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। दूसरी जो उन्होंने बताई है खूबी, वो है शख्सी बेइज़्ज़ती। मतलब ये पहले खूबी बताई है शख्सी इज़्ज़त, अब वही जो है शख्सी बेइज़्ज़ती। मतलब इज़्ज़त, अगर शख्सी इज़्ज़त होगी, इज़्ज़त का एहसास होगा अपनी और दूसरों की, तो कौम तरक्की करेगी। और अगर यही चीज़ नहीं होगी, मतलब कि उसमें अपनी इज़्ज़त का ख़याल नहीं होगा, ना अपनी और ना दूसरों की इज़्ज़त का ख़याल शख्स नहीं करेगा, तो हर ज़ाती तौर पर जो है वो दूसरों की इज़्ज़त का ख़याल नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा कि कौम जो है ज़वाल का शिकार होगी। मतलब कौम के वो से ना अपनी इज़्ज़त का ख़याल है, ना कौम की इज़्ज़त का ख़याल है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, कौम ज़रूर जो है फिर वो ज़वाल का ही शिकार होगी। उसके बाद मतलब तमाम अफराद के बारे में, तमाम अफराद में क्या है, इज़्ज़त का एहसास अगर नहीं होगा, मतलब इज़्ज़त का एहसास होगा तो बहुत खूब है, तरक्की करेगा। अगर नहीं होगा तो उन्हें कौमी वक़ार और इज़्ज़त के लिहाज से भी नहीं होगा। मतलब उन्हें कौम की इज़्ज़त से फिर क्या, जिस बंदे को अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं, तो वो फिर कौम या मुल्क की इज़्ज़त से उसे क्या वास्ता। तो फिर आगे तीसरी चीज़ जो है वो है शख्सी बेईमानी। यहाँ पे शख्सी ईमानदारी खूबी बताई गई है। अब यहाँ पे जो है उसकी ज़वाल का सबब बताया गया है, शख्सी बेईमानी। तो जब अफराद बेईमानी के मरतकब होंगे तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी जो है अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं देंगे। मतलब ईमानदार होंगे तो वो एहसन तरीके से खूब जो है ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है सरअंजाम देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो जो है अपने तमाम तर उन पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं उनको अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं देंगे, जिससे वो कौम जो है ज़वाल का शिकार होगी, और वो शख्स जो है वो कौम और मुल्क की ज़वाल का जो है सबब बनेगा। उसके बाद आगे जो है वो जो बताया गया है अगली ज़वाल का सबब, वो है शख्सी खुद गर्ज़ी, कि मतलब हमदर्दी का जज्बे का ख़त्म हो जाना। अगर हमदर्दी का जज्बा है तो कौम ने तरक्की की, लेकिन अगर खुद गर्ज़ी आ गई तो उसके अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी ना हो, दूसरों की वो जो है ज़रूरत का ख़याल ना करे, दूसरों के काम ना आए, तो वो जब कौम के अशख़ास खुद गर्ज़ी का शिकार होते हैं तो वो इंसानी हमदर्दी से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं, कि उनके अंदर बिल्कुल हमदर्दी ख़त्म हो जाती है, दूसरों का ख़याल ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, दूसरों और वो दूसरों के काम नहीं आते, तो इससे क्या होता है, कौम ज़वाल का शिकार होती है। तो इसके बाद जो है ज़वाल का जो आखिरी जो उन्होंने सबब बताया वो ज़ाती बुराइयाँ हैं, कि तमाम कि कौम जो है वो अफराद से मिलकर बनती है। मतलब अफराद जो हैं वो मिलकर या रियाया जो है मिलकर जो है कौम बनाती है। तो जब कौम के हर फ़र्द में ये बुराइयाँ पाई जाएंगी तो फिर कौम पस्ती और ज़वाल का शिकार होगी। मतलब अगर उनमें ये जो पहले तरक्की के अनासर बताए गए, अगर ये अनासर पाए जाएंगे हर फ़र्द में तो कौम तरक्की करेगी, अरूज पर जाएगी। लेकिन अगर ये जो आगे तनज़्ज़ुल की निशानियाँ बताई गई हैं, वो भी हम बताए गए हैं अनासर, अगर ये किसी कौम के हर फ़र्द में पाए जाते हैं तो वो कौम जो है ज़वाल और पस्ती का शिकार होगा। तो इन असबाब से क्या है, मुआशरा बिल्कुल अखलाकी, तहज़ीबी, तमद्दनी, माशरती बुराइयों का जो है मरकज़ बन जाएगा। ये तमाम बुराइयाँ जो हैं, इन तमाम बुराइयों का जो है वो एक गढ़ बन जाएगा जब इंसान के अंदर, हर फर्द के अंदर ये बुराइयाँ पाई जाएंगी। तो एक शख्स की बुराइयाँ जो हैं, बुराइयों को अगर जमा करें, मतलब एक शख्स के अंदर जो बुराइयाँ हैं वो बाकी अफराद में भी मौजूद हो, तो तमाम अफराद की बुराइयाँ मिलकर क्या है कि वो मुल्क कौम के लिए ज़वाल का सबब बन सकती हैं, कि हर फर्द के अंदर अगर ये बुराइयाँ पाई जाएँ। मज़ीद जो है मुसन्निफ़ इसमें बताते हैं कि अगर हम चाहें, मतलब अगर हम कहें कि जी बैरूनी, जैसे यहाँ पर उनके बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम कहें ना कि बाहर से कोई आए और हमारी इस्लाह करे या इन बुराइयों को ख़त्म कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वक्ती तौर पर हो सकता है हम इसका सद्भाव कर लें कि बैरूनी कोशिश से कर लें, लेकिन अगर वक्ती तौर पर हो भी जाता है तो बाद में यही बुराइयाँ और ज़्यादा जो है पुरजोश होकर, ज़्यादा ज़ोर आवर होकर, ज़्यादा जो है आप जोश वाली ज़ोर और शोर के साथ जो है मज़ीद जो है ये बुराइयाँ पैदा हो जाएंगी, और फिर जो है इनसे निपटना, इन पर काबू पाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती किरदार की हालतों को तरक्की दें और अपनी इस्लाह
خود کریں، مطلب ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ذات کے اندر جو ہمارے برائیاں موجود ہیں ان برائیوں کو ختم کریں، ان برائیوں کا استحباب کریں تاکہ جو ہے قوم ترقی کر سکے۔ اگر ہم نے قوم کی ترقی اگر ہم چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے اندر موجود برائیوں کو ختم کریں، پھر ہی کوئی ملک یا قوم جو ہے ترقی کر سکتی ہے، کیونکہ قوم یا ملک جو ہے وہ کس کا مجموعہ ہے؟ افراد کا، رعایا کا، ایک ایک فرد مل کر کے ہی جو ہے قوم بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اصلاح ہماری اپنی ضروری ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری جو اس پیراگراف کی تشریح جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے اگلے سبق کا خلاصہ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔